کرناٹکا مشائخ بورڈ اور آندھرا پردیش مشائخ بورڈ، آندھرا پردیش مشائخ بورڈ کے صدر سید ذکاء الدین حسینی صاحب اور کرناٹک کے مشائخین کرام، شیخ روزے کے سجادہ نشین ڈاکٹر الشاہ خواجہ افضل الدین جنیدی صاحب سراج بابا، حضرت خواجہ رکن الدین طولہ رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین، کرناٹک اور شہریان بنگلور و آندھرا پردیش کے مختلف بارگاہوں کے سجادہ گان، صوفیہ و عظام، یہاں اس کولار کی دھرتی، یہاں پر آرام فرما 800 سالہ قدیم اللہ کے ولی حضرت خواجہ قطب غوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ زندہ شاہ مدار قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے مقدس بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے اس سرزمین میں خانقاہ جنیدیہ جو شہنشاہ نگر قطب غوری شہنشاہ نگر مسجد بلال کے مقابل میں واقع خانقاہ جنیدیہ میں آج ایک نشست مشائخین کی ایک نشست قائم کیے ہوئے ہیں، جس میں تمام مشائخین کرام جمع ہو کر جو حالات حاضرہ پر جو منافرت کا ماحول، فرقہ پرستوں کی جانب سے منافرت کا ماحول دن بدن جس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ملکی سطح پر، عالمی سطح پر، اس کی روک تھام کے لیے وهو السميع العليم یا سیدنا محی الدین امر اللہ، یا شیخ محی الدین فضل اللہ، یا اولیاء محی، یا خواجہ محی الدین فرمان اللہ، یا مخدوم محی الدین برہان اللہ، یا درویش محی الدین آیت اللہ، یا بادشاہ فی الحیات الدنیا فی الآخرہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امن کا ماحول ہو جو اولیاء اللہ کے زمانے میں تھا، پروردگار ان کے سچے ذکر میں تمام صوفیاء کرام کا مشن۔ صاحب ایک لحظہ بلا لے، صاحب بلا لے ایک لحظہ۔ اچھا یہاں پر کہا جائے گا، بولا جائے گا، انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ میٹنگ ہمارے آنے والی نسلیں، ہمارے لیے ہمارے ڈیولپمنٹ، دین کا ڈیولپمنٹ، ہماری زندگیوں کا ڈیولپمنٹ، ہماری ہر وہ چیز جو مشکلات میں ہم پڑے ہوئے ہیں، جس حالات میں ہم گزر رہے ہیں، وہ حالات کو کس طریقے سے ہم جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے اس میں ہم اس کو جو ہے نا آسان بنا سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے مشائخین یہاں پر آپ سے کہیں گے۔ انشاءاللہ یہ چیزیں ریکارڈ بھی ہو جائیں گی، اور آپ سے ادباً گزارش ہے کہ یہاں پر اتنے اہم باتیں ہوتی ہیں اور پہنچتی نہیں کہیں جگہ، یہ پہنچانے کا بھی کام کریں، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے کہ اچھے لوگ جب یہ باتیں سنیں گے انشاءاللہ ہر کوئی عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی یقین ہے یہ مشائخین بورڈ کا اگر مجلس آگے ایسے ہی چلتے رہی تو میدان بس نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے کاموں کو دیکھ کر، مشائخین بورڈ کے کاموں کو دیکھ کر انشاءاللہ تعالی جہاں ذکر حبیب خدا ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب خدا ہوتا ہے وہاں خود خدا قریب ہوتا ہے، اور ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم جو ہے نا ایسی مبارک محفل میں ایسی محفل جس محفل میں بیٹھنے کے لیے فرشتہ تڑپتا ہے، حوران جنت بلکتے ہیں کہ ہمیں بھی اس محفل میں جو ہے مولا موقع عنایت فرما۔ جاتی ہو تو اپنے پر مارتے کھڑے ہو جاتی کہ یہ کون سنا رہا ہے، یہ کون پڑھ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
शान अक़दस पे सलात व सलाम का गुलदस्ता, इस किताब को अलहाज सैयद सफदर वलीउल्लाह साहब क़ादरी चिश्ती ने बतौर तोहफ़ा तमाम आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशिक़ान औलिया को, अहले खानसा को तोहफ़ा पेश करने के लिए किताब को हमको लाएंगी। ये किताब का भी इजरा बदस्ते मुबारक डॉक्टर अशराफ ख्वाजा अब्दुल्लदीन जुनैदी साहिब सिराज बाबा, हज़रत सैयद ज़काउल्लाह हुसैनी साहिब, सदर नशीद आंध्र प्रदेश मशाइख बोर्ड, हमारे हज़रत ख्वाजा रुकनुद्दीन तोला रहमतुल्लाह अलैह की सज्जादा नशीद साहिब क़िबला और हमारे मुफ्ती साहिब क़िबला अलग अलग मुख्तलिफ बारगाहों से तशरीफ़ लाए हुए, सज्जादागान चित्तूर से हमारे कादी साहब हमारे तशरीफ़ लाए हुए, तमाम सलासिल के जो भी शयूखान तरीक़त थी जिनका नाम फर्दन नहीं जानते, तमाम के दस्ते मुबारक से ये तोहफ़ा गुलदस्ते सलाम का तमाम को मुफ्त पेश किया जा रहा है। ये खानक़ाह जुनैदिया में इसका इजरा अमल में है। अल्लाह का जो मिशन है उसको फिर से उसकी एहिया, खानक़ाही निज़ाम की एहिया, ये तमाम चीज़ें जो है इस पर गौर व फिक्र करके हम इंशाअल्लाह एक एक काम शुरू करेंगे। हमारे मोहतरम सैयद ज़काउल्लाह साहब इस मशाइख बोर्ड के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, और चित्तूर के काजी साहब भी यहाँ पर हैं और मुख्तलिफ़ मुकामात पर से आए हुए मशाइखीन भी हैं। उन सब से मुशावरत करके इंशाअल्लाह जैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है अब फ़िल वक्त ग्राउंड लेवल पे ग्रुप बना दिए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो है बनाकर सबको जोड़ने का काम फिल वक्त हो रहा है। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द जो है प्रैक्टिकली तौर पर भी इस मशाइख बोर्ड के तहत काम शुरू होगा अल्लाह चाहे। हाँ, आंध्रा की सतह पर तो बन गया है, उसकी शाख जो है कर्नाटक में भी शुरू होगी हमसे। पैगाम ये है कि उम्मत मुत्तहिद हो जाए, दिलों में दूरियां जो हो रही हैं दूरियां ख़त्म करें, एक हो जाए। ख़ासकर जो है खानक़ाही निज़ाम से मुंसलिक जो मशाइखीन, जो सज्जादागान, जो उलमा कराम हैं, वो लोग जो है एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे से मिलकर काम करें तो इंशाअल्लाह काम होगा। इत्तेहाद में ही क़ुव्वत है और इत्तेहाद का मुज़ाहरा हम करेंगे तो बातिल क़ुव्वतें ख़ुद ब खुद जो है ख़त्म हो जाएंगी। इंशाअल्लाह यही पैगाम जो औलिया अल्लाह का पैगाम है कि उम्मत मुत्तहिद हो जाए बस। रियासत कर्नाटक में जो है मदरसा बोर्ड नहीं है, ये बात एक हल्के की जानिब से उठाई जा रही है कि मदरसा बोर्ड बनना चाहिए, तो क्या ये मसला है? मदरसा बोर्ड मदारिस तो चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ जगह, अलबत्ता मदारिस में जो है असरी तालीम की कमी है। जो मदारिस यहाँ पर चल रहे हैं असरी तालीम की कमी है। इंशाअल्लाह मशाइख बोर्ड की जानिब से जो मुशावरत होंगी उसमें जो है मदारिस में असरी तालीम का निज़ाम भी क़ायम करके जो मदारिस पर इतराज़ात जो किए जा रहे हैं उसका सद्देबाब किया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब से जो है ये मदारिस जब सब क़ायम हुए, पुराने उलमा इकराम जो है क्योंकि हमारे कई उलमा इकराम ने हिंदुस्तान की आज़ादी में शिरकत की और अपने अपने क़ुरबानियाँ पेश की, उसका पैगाम हर मदारिस में हर बच्चे को बताया जाता है, सिखाया जाता है कि हुब्बुल वतनी क्या है और हमारे सरज़मीन से मोहब्बत क्या है, ये तमाम चीज़ें सिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हर मदारिस में 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, ये इसका जश्न मनाते आए हैं और इंशाअल्लाह क्योंकि ये 75वीं सिल्वर जुबली है, इस साल जो है बड़े पैमाने पर आलीशान तरीक़े से ये सिल्वर जुबली हर मदारिस में हर खानक़ाहों में मनाया जाएगा इंशाअल्लाह। आंध्र प्रदेश स्टेट मशाइख बोर्ड आंध्र प्रदेश के अंदर इंसानियत की हिफाजत के लिए, हर मिस्कीन की मदद करने के लिए, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कमोपेश 3.5 साल से कोशिश कर रहा है। आंध्र प्रदेश के अंदर 300 से ज़्यादा कमेटीज़ मशाइख बोर्ड के और 350 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने के बाद कर्नाटका के अक्सर आवाम ये कहती रही, एक गुजारिश करती रही कि जिस तरह आंध्र प्रदेश में हर इंसान की मदद करने का जो आपने एक सबब बनाकर जो मदद कर रहे हैं, इंसानियत की मदद करना, इंसानियत की हिफाजत करना, तमाम सलासिल को मुत्तहिद करना, खानक़ाहों में जो निज़ाम सूफीज़म का चल रहा है वो निज़ाम कर्नाटक में भी फैलाना है। तो उस सबब से आंध्र प्रदेश स्टेट मशाइख बोर्ड ने जो साउथ इंडिया है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना,
यहाँ पे सफ़र किया और सफ़र करने के बाद हर जगह पे भी आंध्र प्रदेश मशाइख बोर्ड, साउथ इंडिया मशाइख बोर्ड को जो है कि कमिटीज़ और ग्रुप्स तैयार करके वहाँ पे बेस लेवल से जो इंसानियत के बचाने के लिए इंसानों के अंदर जो कमियां, जो बीमारियां, जो अंदर जो जिनके दिलों के अंदर डर खौफ है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। और इंसानियत की हिफाजत के लिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने का आंध्र प्रदेश स्टेट मशाइख बोर्ड ने जो अहम मकसद लेकर निकला है, तो वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल यहाँ पे भी बनाने के इरादे से आज कोलार में मशाइख बोर्ड तशरीफ़ लाया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ से एक काम भी शुरू किया जाए कि जिस तरह आंध्र प्रदेश स्टेट मशाइख बोर्ड बना है, चल रहा है, इसी तरह कर्नाटका स्टेट मशाइख बोर्ड भी बनाया जा रहा है। तो उस कर्नाटका स्टेट मशाइख बोर्ड को बनाने के लिए यहाँ पे हमारे वलीबा भी आए हुए हैं और जो के सिराज शेख रोज़ा के ताजुद्दीन बाबा अफजल जुनैदी साहब भी आए हुए और रुकनुद्दीन दौला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सज्जादा नशीन भी यहाँ पे आए हुए और बहुत सारे मशाइखीन आए हुए हैं सिर्फ सूफीज़म को आम करने के लिए कि अगरचे आप मस्जिद बनाओगे तो मस्जिद में सिर्फ मुसलमान आएगा, मंदिर बनाओगे तो मंदिर में सिर्फ हिंदू जाएगा, चर्च बनाओगे तो चर्च में सिर्फ क्रिश्चियन जाएंगे। बारगाह है हज़रत कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी बारगाह है कि यहाँ को मज़हब नहीं दिखाया जाता, यहाँ पे मज़हब नहीं दिखाया, जितने भी बारगाह हैं तो यहाँ पे हर मज़हब वाले आते हैं। तो इसी मज़हब को लेकर इस मज़हब को आम करने के लिए जो सूफियाने कराम के काम जो है उसको आम करने के लिए मशाइख बोर्ड बनाया गया है। मशाइख बोर्ड में हर मज़हब वाले आ सकते हैं, हर मज़हब वालों को इसमें पढ़ाया जाता है, हर मज़हब वालों को इसमें ट्रीटमेंट यानी इलाज किया जा सकता है। तो ये मकसद को लेकर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मशाइख बोर्ड आज कोलार में कर्नाटका के अंदर काम शुरू करने के लिए कोलार से शुरू किया जाए और हज़रत कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से रजिस्ट्रेशन जो है नॉन गवर्नमेंट नॉन पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ इंसानियत के लिए बनाया गया है। तो इसके अंदर ना हमारे साथ ना मजहबी इख्तिलाफात हैं, ना सियासी इख्तिलाफात हैं, ना हम किसी के फेवर में हैं, ना किसी के खिलाफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की हिफाजत के लिए, इंसानियत का आम करने के लिए। देखिए कि एक मुर्गी का बच्चा या कुत्ते का बच्चा भी अगरचे किसी के आगे निकल कर चला जाता है, वो मर जाता है, तो उसको बचाने के लिए बहुत सारी तंजीमें, लेकिन इंसानियत की हिफाजत के लिए तंजीमें बहुत कम है। ह्यूमन राइट्स के तहत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो खुला तलाक और किसी का कब्ज़ा बचाने के लिए है। लेकिन जो इंसानी हुकूक है, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करने के लिए, कब्रिस्तान तो हम बनाते हैं मरने के बाद ले आकर दफन करने के लिए, लेकिन उस कब्रिस्तान से जाने से पहले इंसान की जो हिफाजत होनी है वो मशाइख बोर्ड करेगा इंशाअल्लाह। स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल का इंशाअल्लाह वो डेवलप करेगा, उसको बनाएगा इंशाअल्लाह, बिल्ड करेगा। और इसलिए कि हॉस्पिटल इसलिए है कि कब्रिस्तान में मरने के बाद हर इंसान आकर उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन कब्रिस्तान को जाने से पहले जो मदद करना चाहता है वो मशाइख बोर्ड करना चाहता है, इसलिए हॉस्पिटल्स बनाना चाहता है। सेकेंड स्टेट है जो कर्नाटका में, यहाँ पर केरला। इससे आंध्र प्रदेश के बाद हमने केरला का सफ़र किया था, तो वहाँ पे बड़े बड़े जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़, दारुल हुदा, नूरुल हुदा और सकाफतुल सुन्निया के जो बड़े बड़े चांसलर्स हैं, इन्हों के पास हमने अपना मकसद रखा। तो उन्होंने कहा कि हमने इस 1947 के बाद से ऐसी कोई तंजीमें नहीं देखी जो इंसानियत का काम करते हैं। कोई मज़हब के लिए काम कर रहा है, कोई अपनी खानका के लिए काम कर रहा है, कोई अपनी जमात के लिए काम कर रहा है, लेकिन मशाइख बोर्ड एक ऐसी जमात है, ऐसी एक तंजीम है जो तमाम इंसानियत के लिए काम कर रहा है। तो उन्होंने खुश हुए और हमारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने में अपना साथ देते, बल्कि उन्होंने अपना ये एक भरोसा दिया है। शुक्रिया। इसकी रोकथाम के लिए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर अहले बैत अत्हार, गौस व ख्वाजा, तमाम मुक़द्दस औलिया अल्लाह, ख्वाजा बंदे नवाज हो, बुज़ुर्गान दिन की मुक़द्दस तालीमात, सूफिया कराम की तालीमात को, तसव्वुफ़ को आज भुलाकर इस तालीम से, मुक़द्दस तालीम से कोसों दूर होकर जो है हर तरफ बदअमनी का माहौल है, तो हर तरफ अमन का माहौल, जिस तरह औलिया अल्लाह ने पैगाम दिया था, हज़ारों बंदगान खुदा औलिया अल्लाह के दीवाने हो गए थे, गौस व ख्वाजा के, ख्वाजा बंदा नवाज के, शेख दक्कन के, तमाम औलिया अल्लाह के, ख्वाजा कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह के। इसी तरह का पैगाम उन औलिया अल्लाह का ही नक्श कदम और उन औलिया अल्लाह की मुक़द्दस तालीम को आम करना मशाइख बोर्ड का अहम मशाइख बोर्ड के अहम अगराज़ व मक़ासिद में से है। और साथ ही साथ इसके दरगाहों, खानखाहों की मिल्कियतें जो औक़ाफ़ी हो या फिर गैर औक़ाफ़ी हो, ऐसी जगहों पर या फिर जगह नए सिरे से लेकर मशाइख बोर्ड कौम मिल्लत की फ़लाह व तरक्की के लिए तालीमी इदारे और अस्पताल, जो भी इंसानी खिदमत अंजाम देने के लिए मरकज़ हो, वो तमाम मरकज़ बनाने का
عزم رکھتا ہے, ارادہ رکھتا ہے, قوم و ملت کی فلاح و ترقی کا عزم اور ارادہ رکھتے ہوئے امن و سلامتی اور فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا یہ مشائخ بورڈ اپنے کام کو انجام دیتے ہوئے, اپنے دائرے کو وسیع کرتے ہوئے ملکی سطح پر بھی ہمارے سید ذکاء الدین حسینی صاحب تمام مشائخین دورہ کرتے آئے ہیں, اور اسی طرح آج کولار میں ہوا ہے, اس کے بعد میسور میں الگ الگ مقامات پر تمام درگاہوں کے جو بھی ہیں ہر سلسلے کے قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی, مداری, شاذلی, رفائی, وارثی, ہر سلسلے کے بزرگان دین کو جوڑ کر ان تمام بزرگان دین کے سلسلوں کا روحانی فیض لے کر عوام میں, عام میں, تمام قوموں میں امن کا ماحول پھیلانا, امن و سلامتی کا ماحول, بھائی چارگی کا, تہذیب و ثقافت کا, قومی یکجہتی کا پیغام پھیلانا مشائخ بورڈ کا اہم مقصد ہے. تو آندھرا پردیش کے طرز پر کرناٹک میں بھی بن رہا ہے, کرناٹک میں جو ہے پہلے سے مشائخین تنظیمیں الگ الگ ہیں, مگر جو ہے آندھرا پردیش کا مشائخ بورڈ جو ہے اس کے تحت یہاں پر بھی ایک مشائخ بورڈ قائم کر کے دونوں بھی کرناٹک مشائخ بورڈ اور آندھرا پردیش مشائخ بورڈ دونوں بھی ضم ہیں, مل جل کر کام کرتے ہوئے تمام مشائخین کو اس میں ضم کرنے کا مصمم جو ہے ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ. دوسرے ریاستوں کے میں بھی دوسروں کو بھی جا کر ہی دورہ کرتے آئی ہمارے سید ذکاء الدین حسینی صاحب, ہر جگہ بھی بورڈ بڑھے گا. کیرلا میں بھی بات کیے ہیں, تلنگانہ میں بھی گفتگو چل رہی, تمام مشائخین کی میٹنگ ہوئی ہے, الگ الگ مختلف بارگاہوں کا دورہ کرتے ہوئے ہمارے سید ذکاء الدین حسینی صاحب کے ساتھ ایک وفد, ہم تمام بندوں کا, ہم تمام مشائخین صوفیہ کا یہی کی کوشش یہی ہے کہ تمام صوفیہ کرام کو, تمام اولیاء اللہ کی اولادوں کو یکجا کر کے, تمام سلسلے والوں کو جو اولیاء اللہ نے پیغام دیا تھا عرصہ دراز سے, جو اسلام کی 1400 سالہ 1450 سالہ تاریخ شاہد ہے, وہی صحیح العصر جو وہی تعلیمات کو عام کرنا, فرقہ پرستی کا خاتمہ کرنا اور انسانیت کے قومی یکجہتی کے پیغام کو عام کرنا ہی ہمارا مقصد ہے.